हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, यानी यहाँ पर जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो हमारा क्लास 10वीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी अनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और उन क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और हर बात को जो है क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर बात की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और कुछ क्वेश्चनों का जो यहाँ महत्व रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, heredity and evolution. That's important. Class 10 CBSE NCERT science and technology book here. That's important. Next question arrive here. That's the most important. Explain a Mendel's experiment with the piece on the inheritance of the character, considering only one visible contrasting character. You know that is important. That's important for the exam view here. Explain the Mendel's experiment with the P on the inheritance of their characters, considering only one visible contrasting character. You know that's important. The pure tail P plant and the pure draft P plant were crossed by the Mendel. Every F1 generation plant harvested was tall. Every F1 generation plant harvested was a tail. Mendel obtained both tail and draft plant in the ratio of 3:1 in the F2 generation. When the cell plant from the F1 generation, that's important experiment Mendel's here, and this explained by why there are two alleles for each set of the opposing characteristics. You know that's important. This mentions why there are two alleles for the each set of the opposing characteristics. A dominated alleles control the trait that is expressed in the first generation, means F1, whereas the received genes regulate the trait that is not expressed in the first generation. That's important here. A dominant alleles control their traits that is expressed in their first generation F1, and whereas receives our genes regulate their trait that is not expressed in the first generation. That's important. And when the both opposing alleles are present in the F1 individual, and there is no mixing of alleles, instead there is segregate once or more during their production of the gametes. That's important here. Instead there are segregate once or more during their production of the gametes. Receive stress, therefore this surface is their F2 generation. As a result, the combination of the receives genes, you know that's important. Receive stress, therefore this surface in the F2 generation as a result of the combination of the receiver genes. That's important here. And let's see 3:1 ratio diagrams here. You know that on your screen there is a most important here, monohybrid cross here.
there is a monohybrid cross here, a trace seed shape and the alleles are is round and are brinkled, that's important, and cross here round seeds into round seeds, that's important here, cross here. There is capital R and cross here capital R and R. That's important on your table. That is an important character 3:1 ratio here. The RR is the first here. That's important. A genotypes is RR and the R small r and small r here. A phenotypes is a round and brinkling. Means a G ratio is a 1:1. There is a 1:1. But it is genotype ratio is a 1:1 and phenotypes is a ratio here 3:1. That's important here for the exam view. That is important. The genotypes ratio here 1:1 and phenotype ratio is 3:1. That's important. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10 में CBSE NCERT साइंस और प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्व रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कि केवल एक दृश्य विपरीत लक्षण पर विचार करते हुए लक्षणों की विरासत पर मटर के साथ मेंडलव के प्रयोग की व्याख्या करना है। कि जो मेंडलव ने जो है अपनी मटर पर प्रयोग किया था वो किस बेस पे आधारित थी। देखा जाए तो शुद्ध लंबे मटर के पौधे और शुद्ध बौने मटर के पौधों को मेंडलव द्वारा संकरण कराया गया था, यानी शुद्ध लंबे मटर और शुद्ध बौने मटर के साथ जो है मेंडलव ने क्रॉस करवाई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो प्रत्येक F1 पीढ़ी का पौधा लंबा था, यानी पहले F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हुए सबके सब लंबा था। मेंडलव ने जब F2 पीढ़ी में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त किए गए। जब उन्होंने F1 पीढ़ियों को प्राप्त किए तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहले पीढ़ी में देखा गया तो सारे पौधे लंबे हुए, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में गया तो 3 पौधे जो थे लंबे थे लेकिन एक बौना हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है कुछ जो है बौने मटर के जो है मेंडलव की शुद्धता उसमें आ गई। और यह बात बताता है कि विरोधी विशेषताओं ने प्रत्येक सेट के लिए 2 एलील्स क्या है, यानी यह बताता है कि विरोधी विशेषताओं के प्रत्येक सेट के लिए 2 एलील्स क्यों हैं। एक प्रमुख एलील उस विशेषता को निर्धारित करती है जो पहली पीढ़ी यानी F1 में व्यक्त होती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एलील उस विशेषता को निर्धारित करता है जो पहली पीढ़ी F1 में व्यक्त होती है, जबकि एक अप्रभावी जीन उस विशेषता को नियंत्रित करती है जो पहली पीढ़ी में व्यक्त नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। देखा जाए तो जब हम F1 व्यक्तियों में दोनों विरोधी एलील्स मौजूद होते हैं तो एलील्स का कोई मिश्रण नहीं होता है और इसके बजाय यह युग्मक के उत्पादन के दौरान एक बार फिर अलग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब F1 व्यक्तियों में दोनों विरोधी एलील्स मौजूद होते हैं तो एलील्स एक कोई विशेष मिश्रण नहीं होता है और इसके वजह से युग्मक के उत्पादन के दौरान एक बार फिर अलग हो जाता है और इसलिए अप्रभावी जीन के संयोजन के परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ियों में अप्रभावी लक्षण फिर से उभर आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो है F2 में अप्रभावी लक्षण फिर से जो है उभर आते हैं। पहले पीढ़ी में नज़र नहीं आएगा लेकिन दूसरी पीढ़ी में इस तरह के लक्षण जो है ज़रूर नज़र आएंगे और इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक देखें, चित्र के अनुसार देखें तो ये समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं पिक्चर को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रे सीड शेप है, एलीस जो होगा R होगा जो कि स्मॉल r और कैपिटल R में हम यहाँ एलीस लेंगे और क्रॉस जो होगा राउंडेड सीड जो राउंडेड सीड के साथ करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जीनोटाइप जो होगा वो RR, कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जीनोटाइप्स। अगर फिनोटाइप की बात करें तो इसमें राउंडेड एंड ब्रिंकलिक सिर्फ एक होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। जरा देखा जाए तो जीनोटाइप आप समझ गए होंगे कि जीनोटाइप की यहाँ पर संख्या जो है
टाइप की अगर रेशो की बात करें तो 1:2:1 पे आएगा। यानी आप देख सकते हो कि 2 कैपिटल आर है, 2 स्मॉल आर है, इसलिए जीनोटाइप जो होगा 1:1 के आएगा रेशो में। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो जनरल सी बात है कि 3 में जो होगा कैपिटल आर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन 1 में जो है स्मॉल आर है, तो इसका जो है फिनोटाइप रेशो बनेगा 3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रखता है। इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करोगे, बनाओगे भी, और एग्ज़ाम में जो है एक्सप्रेस भी करोगे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम व्यू से। समझ में आया? अच्छा लगा और त्रिपाण से मदद करने का विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का लक्ष्य यही है कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे, कोई बच्चों को जो है किसी प्रकार की जो है दुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं एक बात जानता हूं कि वीडियो की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में आपको वीडियो ही वीडियो नज़र आ रहा होगा, लेकिन बात इतनी सी है कि वीडियो देखिए हर जगह आता है, समझ भी होती है, लेकिन जहां आपको बेस्ट लगता है, समझ आती है, उसी के साथ आगे बढ़िए तो महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं आप छोटे क्लास में होते हो और बड़े बड़े वीडियो देख रहे होते हो तो आपको वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। एग्जामिनर ने आपसे रामायण नहीं पूछी थी, आपसे सिंपल बात पूछी थी, और आप बड़े बड़े वीडियो देख के उसमें से कन्फ्यूजन डाल देती हो। इसलिए एग्जामिनर भी काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है कि बच्चे को किस बात की नॉलेज है। कहते हैं जितना हमारा सिलेबस हो उसी बेस पे चलिएगा तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी रहता है, इसलिए देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, और शेयर करना ही दूसरे बच्चों का केयर रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास थोड़ा भी है तो जर्नल सी बात है, जब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो त्रिपाण से मदद होगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी वीडियो देख पाइएगा और तभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा। सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।